big hello to everyone or anyone if someone is watching or not. But hi, my name is Varun. I'm 25 years old और मैंने अभी अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट करी है लाइफ में एंड दैट इज़ माई फिटनेस जर्नी. एज यू कैन सी इट्स क्वाइट एविडेंट आई एम इंडीड एन ओबीस पर्सन. और इसकी वजह से आई हैव हैड टू एंड्योर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द पास्ट. I'm still, going through that phase, but I have now made changes to my life. I'm now going to the gym. I'm now making changes to my diet as well. I'm taking my protein. Of course, प्रोटीन कौन नहीं लेगा भाई. आज की डेट में कौन प्रोटीन नहीं ले रहा है, पहली बात तो यही है. तभी इतनी ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है और तभी इसी वजह से मुझे अब 6,000 रुपये के करीब देने पड़ेंगे प्रोटीन के लिए, जो कि अभी नहीं है, बाद में है. सुनने में तो यही आ रहा. वेल, so talking about my diet, I am now currently hovering around 2,500 calories, give or take. Like that is my calorie intake for the day. और अभी मैं फ़िलहाल उससे ज़्यादा कम नहीं कर रहा हूँ. My maintenance is about like 4,500 ish. Context के लिए I'm 150 kgs. तो of course इसी वजह से मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज इतनी ज़्यादा है. बट आई हैव टू लाइक से समथिंग दैट it is an extremely easy choice to make to be fit, and I was not mature enough to realize how important that was until now, until these past 2 weeks. It is a very very good thing to actually let it out, like doing that cardio every day, lifting those weights, although I'm not lifting too heavy, but I'm still getting there. Apart from that, I would like to say that I am still trying to get hold of a lot of things. एक चीज़ मैं बहुत ऑनेस्टली बोलना चाहता हूँ, मुझे भूख इतनी ज़्यादा लगती है ना ये डाइट करने में कि मैं पागल हो जाता हूँ. एंड इट इज़ सो डिस्ट्रैक्टिंग. इट एक्चुअली challenges me so much. Like, it actually challenges me more than I would say the gym would challenge me, because it is an actual difficult thing to maintain. Because gym, यार gym 1 घंटा 2 घंटा चला गए ज़्यादा से ज़्यादा, but for a diet, for a deficit to be maintained, it's a 24 hour thing. तो उस चीज़ में मेंटेन रहना बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, ऑफ कोर्स. बट एनीवेज, talking about different things, I would also like to, have my content a little bit structured in this, just like how I talk to you guys about who I am, what I have been doing recently for my fitness journey, and my weight loss process. By the way, I've lost 2 kgs till now, which is not much, but still some progress at least. Apart from that, I would say I would also make sure that my YouTube videos have some relevant topics as well. And talking about the most relevant topics in the fitness space as of right now, it is actually Beast Life versus Wellcore Nutrition. कंट्रोवर्सी मेरे को इतना ज़्यादा खास तो ऐसा सच आइडिया है नहीं, बट हाँ, रील्स से जितना मुझे समझ में आया, आई वुड से दोनों ही चूतियाँ हैं. Because I don't know, and I can't really fathom कि आप कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, आप इतने मतलब एलिगेशंस लगा रहे एक दूसरे पे, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट. लाइक मॉलिक्यूल के साइजेस पे. सीरियसली, नो, डोंट गेट मी रॉन्ग. एज मच एज आई डोंट लाइक तरुण गिल, उस बंदे की एक बात ये उसने सही बोली थी कि तुम इन चीज़ों पे तो लड़ रहे हो कि हाँ तुम्हारा मॉलिक्यूल का साइज़ कितना है, किसका मॉलिक्यूल मिक्स ज़्यादा तेज़ हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है. बट व्हाट अबाउट द एक्सपोर्टर्स? व्हाट अबाउट जो तुम्हारा रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आ रहा है, उसकी क्वालिटी तुमने कैसे इंश्योर करी है? तो these kind of things also matter. And I would say his argument was very compelling. Or yeah, I would say mixability of a certain supplement should not matter in this case, क्योंकि यार first off, creatine is not that big of a deal. Like ठीक है, हाँ, creatine it's a cheap supplement, it's fine,
but it's also very well researched. बट यार इतना ज़्यादा सर पे चढ़ा के रखने का भी आई डोंट रियली सी द पॉइंट. मुझे तो समझ नहीं आया कि आखिर इस चीज़ की कोई नीड भी थी या फिर नहीं भी थी. आई एम स्टिल गेटिंग ग्रास्प ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई हैव बीन वॉचिंग द फिटनेस इंडस्ट्री एक्टिवली फॉर अ लॉन्ग टाइम. और आई वुड से इन द पास्ट जितनी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई हैं ये तो यार कुछ भी नहीं है. एंड आई एम सीइंग like brand ambassadors and not brand ambassadors but like athletes that are sponsored by these brands, they are coming in full support. They are also swinging left and right. और मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि यार मिक्सेबिलिटी इतना बड़ा टॉपिक हुआ कब से है, मुझे तो ये बताओ ज़रा यार. क्योंकि आई डोंट नो, आई थिंक आपका ज़्यादा ध्यान शायद क्वालिटी पे होना चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, आपके रॉ मटेरियल सोर्सिंग पे, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा होना चाहिए आई बिलीव. बट आई डाइग्रेस. और अभी रिसेंटली वो जो स्टडीज़ भी हुई हैं उनमें भी टेस्टिंग जो हुई है उसमें भी यही बताया कि एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव ब्रांड्स में भी लेड मिल रहा है, बाकी सब गंदगी मिल रही है. तो आई थिंक मिक्सेबिलिटी शुड बी द लीस्ट ऑफ आवर कंसर्न्स, स्पेशली एज इंडियन कंज्यूमर्स. डोंट गेट मी रॉन्ग, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई बाहर के ब्रांड अच्छे ही हैं, सिर्फ इंडिया के ब्रांड अच्छे नहीं हैं एंड ऑल. बट यार बाहर के ब्रांड भी जो इंडिया में आ रहे हैं, दोज आर ऑल्सो नॉट प्रोवाइडिंग एनी गुड क्वालिटी. उनका एक अलग बैच चल रहा है जो कि गंदी क्वालिटी का सामान आ रहा है इंडिया और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, और एक अलग सेपरेट उनके डिविजन्स निकल रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए, जो कि थोड़ा सा अजीब है, नॉट गोना लाई. बट जैसा भी है, आई डोंट थिंक दिस इज दैट बिग ऑफ एन इशू. आई थिंक इन लोगों को इस चीज़ पर फोकस करने से ज़्यादा भाई कोई अपना अच्छे से और अच्छी मार्केटिंग स्कीम कर लेते तो दैट वुड हैव बीन बेटर. सो द वर्डिक्ट बेसिकली इज़ कि तुम्हें एज अ कंज्यूमर इस चीज़ के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, और प्लीज़ अपनी उंगलियों को थोड़ा सा शांत रखो. क्योंकि इन ब्रांड्स की कमेंट्स में जाके आपको सपोर्ट या फिर हेट दोनों करने की कोई नीड है नहीं एज सच. दोनों ब्रांड है, दोनों पैसा ही कमा रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे और आपसे ही ले रहे हैं. तो आई डोंट थिंक आपको इतना बड़ा इशू बनाना चाहिए उस चीज़ का. हाँ, बट मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि प्लीज़ क्वेश्चन एवरीथिंग, क्वेश्चन एवरी ब्रांड, क्वेश्चन how they're sourcing their products, their raw materials, how they're processing it. Question everything. And I think जितना ज़्यादा एक कंज्यूमर क्वेश्चन कर पाएगा किसी चीज़ को, तभी वो आगे बढ़ पाएगा और अपनी क्वालिटी इंश्योर कर पाएगा. बिकॉज बिजनेस का मेन प्रिंसिपल ही है प्रॉफिट. इट इज़ प्योर प्रॉफिट. तो इट डजेंट रियली मैटर टू देम अगर वो लोग ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं तुम्हारी हेल्थ के कॉम्प्रोमाइज़ में. एज लॉन्ग एज इट मेक्स देम मोर मनी, दे आर हैप्पी, दे आर गोइंग टू बी मोर देन हैप्पी. तो दैट इज़ माई बॉटम लाइन. एंड आई होप कि this kind of format you guys, if anyone is watching, could understand. I will make sure to edit in a very minimal style, and I will make sure that these videos are very easy going. You don't have to think too much, it's just a normal conversation that I'm having with you guys, or a guy, or if anyone again is watching. But anyways, I don't know, I like talking to the camera today. I really, this is one take, by the way. I haven't done any like separate takes or anything. This is me just starting my camera and then just free balling. So yeah, I really liked it. It was kind of therapeutic, and I will definitely keep on updating you guys on my weight loss, how much weight I'm losing, what are the kind of tricks that I'm using, not really tricks, but the method that I'm using and the routine kind of I'm following. I will make sure that I'll tell you guys about it in the next however many videos that I'll be posting. I'll make sure I'll try to be regular at least, but whatever it is, you will know. So if someone is watching this video, I would encourage you to please subscribe. And yeah, bye bye.